Better write down the syllabus of the revision test. The student who came now. So you will be having 2 revision tests and both tests will be on Tuesdays as your regular tests are on the Tuesdays. But tomorrow there will be no test. The test will going to be start from the next Tuesday. It is 31st, I think. Okay? So revision test 1 will be in the Google form. Both actually are in the Google form with the MCQs. And revision test second will be again in the Google form or maybe in the PDF. Okay? And it is of the subjective one. And both the tests are from the full syllabus. Now let us start revising coal and petroleum. So the chapter start with type of the resources. Okay? Okay? So the resources are of two types. One is exhaustible and one is inexhaustible. The test will be online, bete. Yes. Who will tell me the difference between exhaustible and inexhaustible? Yes. Yes, ma'am. I can tell. Yes, bete, you can definitely tell. Okay, ma'am. Inexhaustible resources are the resources that are present in unlimited quantity. It cannot be replenished. It can be replenished and recycled. It is inexhaustible in nature. And exhaustible resources are the resources that is present in limited quantity. They can't be recycled or used again. So they are non-renewable. Yes, ma'am. And you want to say that exhaustible sources are non-renewable, but inexhaustible sources are renewable. Isn't it, Rhythm? So what are the exhaustible resources? Like we are doing the chapter coal and petroleum. Okay, Jan? It is exhaustible natural resource. जो खत्म होने की जिसकी टेंडेंसी है दैट इज एग्जॉस्टिबल एंड लाइक सन एयर वाटर विंड आर inexhaustible natural resources because they can be used again and again. They are unlimited. Yes, she is writing very correct. This is unlimited and in nature and recycled by nature. You are correct enough, bete. Resourceable, inexhaustible sources are those which can be recycled, and exhaustible resources are those which can't be recycled again and again. So we can say that inexhaustible resources are renewable. You tell me that all inexhaustible resources are renewable or they can be exhausted. Ma'am, they can be exhausted due to the unwise of human activity.
सो बेटे जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल एग्जॉस्ट नहीं करते, ठीक है। मगर हम अगर जैसे वाटर गंदा करते रहते हैं तो चाहे बहुत ज्यादा भी वाटर होगा तो हमें नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट इनएग्जॉस्टिबल है, मगर अगर आप फॉरेस्ट को काटते ही जाओगे और ग्रो नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इनएग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। दे कांट बी रीन्यूड देन, ठीक। तो यू शुड टेक केयर ऑफ inexhaustible natural resources. So first natural resource which is exhaustible is coal, as the chapter suggests. Now who will tell me how is coal formed? Anyone? Again Rhythm is raising the hand. No one other? Yes, bete, how coal is formed? You stand up and tell. Read it. Hurry up, hurry up. Again, jaldi. Read it, bete. Read from me. From here only. हाँ, loudly. Loudly read it. आपकी आवाज ही नहीं आ रही हो ऑफ ऑनलाइन वालों को, कुछ बोलो। Sit down, sit down. Yes, Rida. Now other student will give the answer. Yes, ma'am. Coal is formed under the surface of Earth millions of years ago. Coal is formed when the huge trees they are buried under the surface of the earth due to continuous natural calamities like flooding, etc. This coal is formed under the great heat and pressure, which is converted into peat coal. Peat coal is then under great heat and pressure converted into lignite coal. Lignite coal, which has mainly 60 to 70% of carbon. This lignite coal is Yes. Lignite, bituminous, and then anthracite. yes, ma'am. So to conclude it, we can say Pragati is writing the correct answer. देखो पहले समझो, ठीक। बहुत सालों पहले की बात है, 300 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। पुराने जमाने में चले जाओ, 300 साल भी नहीं, 300 मिलियन ईयर अगो जो फॉरेस्ट वगैरह थे वो बरीड हो गए, इसके अंडर, सॉइल के अंदर, ठीक है। अब बरीड हो गए, नीचे क्या था, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये जो डेड प्लांट, ये फॉरेस्ट वगैरह बरीड हो गए अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये किस में चेंज हो गए बेटे, कोल में। समझ आ रही है। और ये कन्वर्जन ऑफ दिस डेड प्लांट एंड ट्रीज एंड द फॉरेस्ट इनटू द कोल, द होल प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन, ठीक है। ओके, क्योंकि ये जो कोल है is formed from the remains of plant, therefore this
coal is known as बेटे fossil fuel. What the point? कोल को बनने में इतनी जल्दी नहीं बना, कोल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनी, जैसे पहले पीट आई, फिर लिग्नाइट आई, फिर बिटुमिनस आई, फिर एंथ्रासाइड आई, ऐसे बनती गई और ऐसे ऐसे कोल में कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। समझ आ रही बेटे? बहुत सालों पुरानी बात है, स्टोरी की तरह याद करो। बहुत पहले, कितने सालों पुरानी बात है? 300 मिलियन ईयर्स अगो। क्या हुआ 300 साल पहले, इतने साल पहले? फॉरेस्ट बरीड हो गए, फ्लडिंग हुई, कुछ हुआ, नेचुरल कैलामिटीज आई, फॉरेस्ट क्या हो गए? बरीड हो गए। अब नीचे बरीड हो गए, नीचे नीचे क्या था? हाई प्रेशर, और नीचे गर्मी भी बहुत है, लावा है ना अंदर। इन दोनों को मिक्स होकर हमें क्या मिला? कोल। कोल है क्या? जिसमें कार्बन है, फ्यूल है जिसमें कार्बन है। गेटिंग माय पॉइंट? अब कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती गई, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ कोल जिसमें कार्बन की क्वांटिटी सिर्फ 60% है, वो पीट है। उसके बाद कौन सी आई? लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइड। गॉट द पॉइंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच form of coal has maximum amount of carbon? Who will tell me? Again rhythm is telling. Yes, Japji. Yes. बेटे Japji, I am asking you which form of coal, ये type of coal. You are telling me the product of coal. This is the product, bete. Yes. Now Japji is right. Coke is a product of coal, but I am asking you the type of coal. So the type of coal which is having maximum carbon is known as anthracite. कितनी होती है कौन बताएगा? How much carbon content is present in anthracite? Yes, it is approximately 90%. It is approximately 90%. Now, who will tell me which type of the coal has lowest quantity of the carbon? Which type of the coal have lowest quantity of the carbon and how much? Ma'am, peat coal. Yes. It has 60% of carbon. 60%. Okay, 60 to 70, the correct value. Then after peat coal, which is having more carbon quantity after peat? Lignite coal. Lignite coal. How much carbon quantity? 60 to 70%. 60 to 70 in the peat. 70 से बढ़ती नहीं है lignite में बेटे? Ma'am, sorry, 70 to 80. 70 to 80. Okay. The first is our peat and then lignite. And what is the third type of coal after lignite? यही बेटे MCQs में आते हैं. Bituminous. क्यूज में यही कुछ आना है आपके बीच बीच में. तो सबसे पहले आ गया पीट, कितनी है? 60 to 70%. देन आ गई लिग्नाइट, कितनी है? 70 to 80%. देन Bitumen. how much? 80 to 90%. And then Anthracite. how much? 90%. 90%. ठीक, जब कोल मैम इससे ज्यादा भी होती है ना? ज्यादा भी हो जाती है 90% से ज्यादा. हाँ, more than, you can write more than.
more अगर than ऑप्शन 90. में आए तो मोर देन वाला भी करेक्ट है। Okay, ma'am. ठीक है, तो हमने बेटे कोल, फॉर्मेशन ऑफ द कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन। ये फॉर्मेशन कैसी हुई बहुत साल पहले, क्योंकि ये बहुत साल पहले हुई है जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हो आप। ये कैसे हुई? अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, और ये धीरे 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 कोल की हमें डिफरेंट वैरायटीज मिली, जिसमें पहले पीट मिला जो 60 to 70 है, देन लिग्नाइट मिला, देन बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। अब हमें कोल मिल गया, हमें क्या मिल गया? कोल मिल गया। अब कोल से कोल के कंपोनेंट अलग करने हमने, गेटिंग माय पॉइंट? अब कोल से कोल के कंपोनेंट अलग करने के लिए हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करी। क्या करी? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। Distillate. ठीक है, बट डू यू अंडरस्टैंड डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन में हम डिफरेंट कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग करते हैं। डिस्ट्रक्ट करना, किसी को तोड़ना। कोल में जो भी चीजें थी उसको अलग अलग करी। आपको मैं एक ब्लॉक दे दूं जिसमें रेड, व्हाइट, ब्लू कलर का 3 कलर्स हो, तो आप उसको डिस्ट्रक्ट करोगी कि आपका ब्लू कलर अलग हो जाए, व्हाइट अलग हो जाए, रेड अलग हो जाए। वैसे कोल की भी क्या करेंगे हम आगे? अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो हमें क्या मिला? 3 प्रोडक्ट मिले। हु विल टेल मी? Ma'am, can I tell? Rhythm, you will tell every answer. Rest of all are sleeping somewhere. Yes, Jan. coal tar, coal gas, coke. Coal tar, coal gas, and coke. Which is a solid, which is a liquid component? Coke is solid, coal tar is liquid, and coal gas is gaseous, ma'am. So we get 3 state of matters in this. One is we are getting solid, one is we are getting liquid, and other one is we are getting gas, and some byproducts are Gaseous. also there. Okay? Now who will tell me which is the purest form of the carbon from these? Purest form of the carbon. Japchi has already told me. Coke. The purest form of the carbon is coke with 98% of the coke. 8%. The purest form of the carbon, अगर आपसे एग्जाम में पूछे इन ऑप्शन में से बेटे, then there is a coke with 98%. अब इसकी लुक कैसी होती है? It is rough, porous and black. It is मैम पोरस का मतलब क्या होता है? पोर्स हैं बेटे, स्पॉन्ज के पोर्स देखे आपने? मैम यस. That is porous. ओके. So it is rough, porous and black. और अगर आपसे कोई पूछे कि which is the purest form, it is coke with 98% of the carbon. So who will tell me the use of coke first? Now Rhythm will not tell me. Anyone other? Who will tell me the use of coke? And otherwise I will take the name. टेक द नेम पे तो हम लीव करना शुरू कर देते हैं क्लास, ये हमारी टर्न ना आ जाए कहीं से। यस प्रभजोत, यू विल टेल मी, हरी अप प्रभजोत। Coke is used in the manufacture of steel and in extraction of many metals.
एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल, ठीक है। ब्लैक स्मिथिंग, यस यू आर राइट। सो इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर। अब स्टील क्या है बेटे? व्हाट इज स्टील? स्टील एक अलॉय है जिसमें आयरन होता है, कार्बन होती है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में यूज होता है। और किसमें यूज होता है? ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? ये जो मेटल्स हैं हमें अर्थ क्रस्ट में, Ma'am, also to smelt iron in blast furnace. हमें ऐसा नहीं मिलते। आयरन की ऑक्साइड मिलती है, किसी की भी चीजें मिलती हैं, तो उससे हमें मेटल अलग करना पड़ता है। मतलब ऑक्सीजन को अलग कर दोगे, आयरन को अलग कर दोगे। समझ आ रही है? कोई और? लेस ब्लैक स्मिथिंग, यस Used to smelt iron. यस Used to smelt iron in blast furnace by yes. using coke. बेटे in the, if we are saying extraction, Used in blacksmithing. yes, you can so many points. Extraction, Ma'am, we have to explain each point. no, you haven't to explain it, bete. Only uses are asked, you should know the points. Okay, Next, ma'am. coal tar. चलो पहले तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमें बाहर से कैसा नजर आता है, इसकी बात कर लें। तो कोल टार कैसा है? ये सारी ब्लैक होंगे, Semi-liquid and semi-solid in form. विस्कस है, बहुत ही गंदी स्मेल का है, अनप्लेजेंट स्मेल, विस्कस, Semi-solid and semi-liquid. black in color. Rhythm, you will not give every answer. ठीक? So very important. It is mixture of more than 200 प्रोडक्ट। अगर आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाए बेटे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में बीच बीच में से, तो हमने बीच वाले क्वेश्चन पहले उठाने हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200। अगर प्योरेस्ट फॉर्म आ गया ऑफ कार्बन तो कोक है। अगर आपसे पूछा जाए मिक्सचर ऑफ 200 प्रोडक्ट, तो यू विल राइट कोल टार। नाउ कोल टार कहाँ यूज होता है? Yes, it is used in medicine, treating dandruff, explosive, perfumes, drugs, naphthalene balls. ठीक? बिटुमेन मैम, ये मैथलिन बॉल्स में कैसे यूज होगा? में बेटे naphthalene Naphthalene ball ball. एक कार्बन कंपाउंड है। दिस इज naphthalene. You will do in higher standard. This Okay, ma'am. naphthalene, तो ये जो है नेफ्थलीन की प्रोडक्शन में यूज होगा। ये कार्बन है, ठीक है। ये आपसे ये क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि नेफ्थलीन बनाने में कौन यूज होता है, रोड को कंस्ट्रक्ट करने में कौन सा यूज होता है। तो बेटे कोल टार ही है, ठीक है। वो जो लिक्विड सा घेरते होते हैं, देखा है आपने कभी रोड्स पे? तो वो मैम, यस। है, हाँ, तो ये भी यूज होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बीच बीच में जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा कोई नहीं पूछेगा, आपने एक एक यूज जो एनसीईआरटी में गिवन है आपको पता होनी चाहिए। डाइज में, ड्रग्स में, मिक्सचर ऑफ 200 प्रोडक्ट, ऐसे हाइलाइट्स, रोड्स में बिटुमेन की क्वालिटी, इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग। मैम, बिल्डिंग्स में भी यूज होते हैं। बिल्डिंग में भी आ सकता है। नाउ कम टू To make कोल building. गैस। अब गैस है, जब हम किसी गैस की बात करते हैं, हमारे घर में एलपीजी है, सीएनजी है, गैसेस ही हैं, तो ये सारी क्या है बेटे? फ्यूल्स है। तो ये भी एक गैस है, कार्बन की गैस है।
जितने भी आप फ्यूल्स की बात करते हो उसमें कार्बन ही तो मेन कंपोनेंट है, तो ये भी एक गैस है। तो इसमें ये भी सबसे पहले किसमें यूज होगी, फ्यूल में। क्यों यूज होगी फ्यूल में, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है, ठीक है, Yes. बिकॉज कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई। और मैम ये first कुकिंग time फ्यूल में भी एज यूज हो सकती जा है। सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। फर्स्ट टाइम इट इज यूज्ड in the year 1810 in the street lightning in London. Street lightning in London. First time it is used in 1810 in the street lightning in London. ऐसे हाइलाइट्स याद करो जब भी एमसीक्यू होते हैं। मैम सेकंड टाइम अमेरिका सेकेंड टाइम अमेरिका, ओके 820। ठीक है बेटे। एंड इट इज यूज फॉर लाइटनिंग एंड कुकिंग पर्पसेस एंड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। सो लाइटनिंग एंड कुकिंग पर्पसेस एंड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये हमारे हाइलाइट्स क्या सीखी हमने। कोल से हमें क्या मिले बेटे, 3 प्रोडक्ट। एक क्या था, सॉलिड, दूसरा क्या था, लिक्विड, और तीसरा हमारा गैस। जो गैस सॉलिड के लिए वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, जिसमें 98% ऑफ कार्बन। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि इसमें यूज होती है। ये यूज कहाँ होती है, मेटलर्जी में, मतलब एक्सट्रैक्शन में, आपकी स्टील की इंडस्ट्री में, जैसे स्मेल्टिंग ऑफ आयरन आपने बोला, ऐसी चीजों में। सेकंड हमने किया कोल टार, ये लिक्विड है, ये मोर देन 200 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इससे क्या क्या मिलते हैं, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव भी बनते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स भी बनती हैं, और रोड्स में भी यूज होता है। हाइलाइट्स हमेशा याद रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इज आपकी आ जाती है बेटे कोल गैस। कोल गैस हमारी फ्यूल की तरह यूज होती है, और फर्स्ट टाइम 1810 में लंदन में एज अ स्ट्रीट लाइटनिंग यूज हुई। ओके एज एन एग्जांपल वी हैव टू राइट। बेटे एग्जाम्पल नहीं बेटे, ये मैं हाइलाइट्स क्यों करवा रही हूँ, देखो आप बच्चों को ये आदत है कि हमें उनके यूजेस आ जाएं, तो आप 2 याद करते हो, 3 याद करते हो, हमें सब यूजेस पढ़नी है। और कहाँ क्या हो रहा है, ये सब कुछ पढ़ना है कि हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकें, 1 वर्ड अटेम्प्ट कर सकें। जो 1 वर्ड या एमसीक्यू बनते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, ओके डायरेक्टली सब कुछ पढ़ लेते हो ऊपर ऊपर से, जो मेन पॉइंट्स है वो छोड़ देते हो। और ये याद रखना बेटे, किसी अगर मेंशन नहीं है डिफरेंस में, कितने डिफरेंस रखने हैं, 3 मार्क्स का होगा तो 6 लिखने हैं, 2 मार्क्स का होगा तो 4 लिखने हैं, हर चीज डबल करके आनी है। अगर मेंशन होगा ठीक है, अगर नहीं मेंशन होगा हर चीज डबल डबल लिखनी है, क्योंकि हाफ मार्क्स होते हैं हर पॉइंट। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। एंड आपकी साइंस की जिनकी प्रैक्टिकल फाइल नहीं आई वो भेजो। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कितना अच्छा हुआ है। X is a product. Listen to me carefully. अब ये करें इसका आंसर देना आप। X is a product formed from coal, which is thick black liquid having unpleasant smell. What is X? कोल टार। Very good. देखो अब आ गया आपको। Which substance is used for constructing road these days in place of coal tar? This is very good. Which substance is used? हमने coal tar तो अभी कर लिया, गैस किस यूज कर सकते हैं?
विटामिन मैम विटामिन शायद होगा. विटामिन तो उसका कंपोनेंट है. यस, विटामिन. वेरी नाइस रिदम. इन प्लेस ऑफ कोल टार विटामिन यूज होता है, वो कोल टार का कंपोनेंट ही है. इसको भी हाईलाइट करो. एमसीक्यू में यही पूछे जाते हैं. Which substance is used for constructing road? Bitumen, a petroleum product. Bitumen, a petroleum product. ये जब हम आगे करेंगे बेटे पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब बिटुमेन मिलता है. याद है? यू हैव डन. Yes. अब यूज हो रहा है इन प्लेस ऑफ कोल टार. ओके, तो हमने कोल में क्या क्या किया अभी? यस, पैराफिन वैक्स तो बेटे वैक्स वैसे यूज होती है. So we have done all about coal. What we have done, how coal is formed. The process of the formation of coal is known as, yes, Jim. The process of formation of coal is known as Carbonization. carbonization. Rhythm will not answer now. Carbonization. Hello, we will meet tomorrow and again we will discuss the question answer.